Good morning, everyone. Today we are going to study the Geography second chapter of class 7, the interior of the Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Interior of the Earth. Just like an onion, the Earth is made up of several concentric layers with one inside another. The crust, uppermost layer over the Earth's surface, is called the crust. It forms only 0.5% of the total volume of Earth. It is the thinnest of all the layers and has less than 1% of the Earth volume. It is mainly composed of silica and aluminum, hence called Sial. Mantle. Just beneath the crust is mantle which extends up to a depth of 2900 km below the crust. It consists of hot, dense and semi-solid rocks. It contains most of the mass of Earth. It consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima. Core. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron, which is ferrous and is called Nife. The central core has very high temperature and pressure. Outer core. It is a liquid layer of about 2266 km. It is mainly composed of nickel and iron called Nife. Inner core. It is the Earth's innermost part. Rocks and mineral. The Earth crust is made up of various types of rocks. Rocks are composed of different minerals which are naturally occurring substances which have contain which have certain physical properties and definite chemical composition. The Earth crust is mostly made up of various types of rocks. There are three major types of rock. Igneous rock. In Latin, igneous means fire. Igneous rocks are formed through the cooling and solidification of magma or lava. Igneous rocks are also called primary rock. There are two types of igneous rock. Extrusive igneous rock. They are formed by rapid cooling of molten magma on the Earth's surface. They are smooth, crystalline, and fine-grained. They are also known as volcanic rock. Example: basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. Igneous rock, igneous intrusive rock. They are formed from magma that cools and solidifies inside the earth crust. They are coarse-grained as they are formed by slow cooling magma. Example: granite. Sedimentary rock. In Latin, sedimentum means settle down. They are formed by deposition of sediment, broken down fragments of rocks at the Earth's surface and within water bodies. It may also certain fossils remain of the dead plant and animal trapped in the layer of the rock. Of plant, animal and other microorganisms that once lived on them. Metamorphic rock. In Greek, metamorphos means change of form. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. They are formed as a result of changes in igneous or sedimentary rock in a process called metamorphosis. Example: clay changing to slate, limestone changing to marble. Rock cycle. The process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. Rock come from lava
and go back to lava, but in the process, they might change from one type of another. When the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. The igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. The metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cools down and solidify into igneous rock. Usefulness of rock. Rock are very important and provides us with material for construction purpose, precious stone like gold and silver, mineral for various industries, chemical for medicine and fertilizer industry, fuel like crude oil and coal. पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी जिसको हम अपना गृह मानते हैं और ये गतिमान स्वरूप है और इसमें अंदरूनी और बाहरी रूप से परिवर्तन होता रहता है। इसकी आंतरिक संरचना ठीक एक प्याज के भांति यहाँ पे भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना भी कई परतों द्वारा बनी हुई है। पहला जो परत है उसका नाम क्रस्ट है। यह सबसे ऊपरी परत होता है पृथ्वी का और यह केवल 0.5% ही है आयतन में पृथ्वी का और यह सबसे पतला लेयर होता है पृथ्वी का जो कि 1% है पूरे आयतन का पृथ्वी के। इसमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो सिलिका एल्युमिनियम है जिसके चलते इसका नाम सियाल पड़ा है। मेंटल ये जो जस्ट है ये ठीक क्रस्ट के नीचे पाया जाता है और इसकी चौड़ाई जो है मेंटल क्रस्ट से लेकर मेंटल की चौड़ाई जो है 2900 किलोमीटर होती है। इसके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा गर्मी और साथ ही साथ इसमें घनत्व भी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ ये हल्का थोड़ा द्रव नहीं ये थोड़ा सा ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ ये अधिकतर मास प्राप्त करता है पृथ्वी का मतलब कि अधिकांश आयतन होता है पृथ्वी का। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम है। इसी के चलते इसका नाम जो है सीमा पड़ा है। कोर यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक संरचना है जो कि पूरे रेडियस में ये 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है और यह सबसे मुख्य भी है और यहाँ पे मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो निकेल और आयरन है जिसको फेरस भी कहते हैं। इसी के चलते इसका नाम जो पड़ा है निफे और ये सबसे केंद्रीय भाग इसका जो सबसे केंद्रीय भाग होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी है और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी है। इसके दो हिस्से हैं आउटर कोर और इनर कोर। बाह्य कोर में जो है वो लिक्विड तरल द्रव्य के रूप में मौजूद है जो कि 2266 किलोमीटर तक पाया जाता है और यह कंपोजिट जो इसमें पाया जाता है निकिल और आयरन के तत्व पाए जाते हैं। इनर कोर जो है वो अर्थ के सबसे आंतरिक भाग में पाया जाता है। रॉक एंड मिनरल पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट पे विभिन्न प्रकार के पत्थर रॉक जो है पाए जाते हैं। रॉक जो है वो संरचना है विभिन्न प्रकार के मिनरलों के प्राकृतिक रूप से उभर कर आने वाले उन सभी चट्टानों जिनका अपना एक भौतिक गुण होता है और उनमें कुछ निश्चित रासायनिक संरचना पाई जाती है उसको हम लोग रॉक कहते हैं। अर्थ क्रस्ट पे जो है खास करके अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक जिसका लैटिन में नाम इग्निस है और इसका मतलब होता है फायर आग। इग्नियस रॉक जो है उसको बनने में वो बनता है किसके कारण जो लावा हमारे सरफेस पे सतह पे आया था उसके ठंडा होने और उसका ठोसीकरण होने के बाद वो लावा जो है इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान वे चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के सतह के ऊपर में मैग्मा के ठंडा होने और सॉलिड होने के कारण जो इनका संरचना
तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें। इसका उदाहरण एक है बेसाल्ट। जो दक्षिण भारत का जो प्लेटू है हमारे यहाँ, वो खास करके बेसाल्ट के चट्टानों से बना हुआ है। आंतरिक चट्टानें वे चट्टानें जब कभी भी मैग्मा पूरी तरीके से पृथ्वी की सतह पर बाहर नहीं आ पाता है और पृथ्वी के आंतरिक परतों के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है और वहीं पे जम जाया करता है, तब इसका निर्माण होता है। इसके एक उदाहरण है ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री सेडिमेंटम का लैटिन का मतलब होता है सेटल डाउन। यह जो है खास करके पत्थरों के टूट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में किसी स्थान पर जमा होने पर इस तरह के चट्टानों का निर्माण होता है। इसको अवसादी चट्टानें के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की सतह पे विभिन्न प्रकार के वाटर बॉडीज में भी यहाँ तक कि ये पाए जाते हैं और इसमें यहाँ तक कि जीवाश्म भी पाए जा सकते हैं और कई लेयरों में ये सेटल डाउन हुआ करता है। इसमें छोटे छोटे जीव भी पाए जाएंगे जिसके चलते जो है कई जिंदगियां उस पर जो जीवित थी वो धीरे धीरे दबते चली जाएंगी और सॉलिडिफिकेशन होगा इनमें और ये अवसादी चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म हो जाएंगे। मेटामॉर्फिक रॉक, इसको ग्रीक भाषा में मेटामॉर्फोज कहते हैं और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में लगातार परिवर्तन होता रहता है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक के तहत भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा हीट और प्रेशर की मात्रा होनी चाहिए। इसके द्वारा यह परिणाम होता है कि चट्टानों का स्वरूप, चाहे वो इग्नियस हो या फिर सेडिमेंट्री हो, उसका स्वरूप बदलकर प्रेशर और हीट के चलते बदल जाता है। इसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्ले जो है हीट और प्रेशर के चलते स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। वहीं पे लाइमस्टोन जो कि एक इग्नियस रॉक है, उसको हीट एंड प्रेशर दिया जाएगा तो वो मार्बल में चेंज हो जाएगा। रॉक साइकिल, यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक पत्थर दूसरे पत्थर के रूप में परिवर्तित होता है। इसी प्रक्रिया को ही हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। यह जो है लावा से बनने और लावा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। इसमें कई तरह के चरण आ सकते हैं। यह मैग्मा के ठंडा होने पे बनता है। उसके बनने के बाद यह आग्नेय चट्टान बनता है और आग्नेय चट्टान बाद में टूट फूट करके वो सेडिमेंट्री चट्टान के रूप में बनता है। फिर वही आग्नेय और सेडिमेंट्री चट्टान जो है हीट और प्रेशर के कारण जो है मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं और वही मेटामॉर्फिक रॉक जो है बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर होने के कारण जो है बाद में मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर बाद में यही जो मोल्टेड मैग्मा है बाद में सतह पे आने के बाद लावा के रूप में सतह पे आता है और वहाँ पे ये जम जाया करता है। फिर से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। यूजफुलनेस ऑफ रॉक, चट्टानों का या पत्थरों का हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इस चट्टानों से हमें बहुत कुछ मिलते भी हैं, जैसे वैसे तत्व जो कि हमें बिल्डिंग या फिर किसी तरह के संरचनात्मक तरीके से उपयोग में लाई जाने वाली पत्थरों का उपयोग में लाया जाता है। जैसे सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग करते हैं। उसके बाद कई बहुमूल्य पत्थर भी जैसे कि सोना और चांदी, उसके बाद मिनरल्स जिससे पाए जाते हैं जो खास करके बहुत से उद्योगों में उपयोग में लाए जाते हैं। इससे केमिकल भी प्राप्त करते हैं जिससे दवाइयाँ और फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। साथ ही साथ इससे तरल तेल भी प्राप्त होता है जिसको हम लोग क्रूड ऑयल और यहाँ तक कि ऊर्जा के लिए कोयला भी प्राप्त होता है।